સુરતમાં થોડા સમય પહેલા નકલી હોસ્પિટલ ઝડપાયા બાદ તંત્ર સફાળું જાગ્યું હતું અને જિલ્લામાં ડિગ્રી વગર જ પ્રેક્ટિસ કરી લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતા મુન્ના ભાઈઓને ઝડપી પાડવા તપાસ શરૂ કરી હતી. તે દરમિયાન સુરત પોલીસે પાંડેસરામાં ચાલતા 3 ક્લિનિક પર દરોડા પાડી બોગસ તબીબોને ઝડપી પાડ્યા હતા, જેઓ પાસેથી BEMSના સર્ટિફિકેટ મળી આવ્યા હતા, જે સુરતના જ 2 તબીબોએ આપ્યા હોવાનું ખુલ્યું હતું. પોલીસે આ તમામ મામલે અત્યાર સુધીમાં કુલ 13ને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસ પકડમાં રહેલા આરોપીઓએ નફ્ફટાઈપૂર્વક કહ્યું હતું કે આરોપો તો થયા કરે. સુરત પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં 100 જેટલી નકલી ડિગ્રીઓ મળી આવી છે. આરોપીઓ 70,000માં જ નકલી ડિગ્રી આપીને 10-12 પાસ બેરોજગારોને એલોપેથિક પ્રેક્ટિસ કરવા પ્રોત્સાહિત કરતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. નકલી પોર્ટલથી તબીબો સાથે છેતરપિંડી. આ ગેંગ દ્વારા BHMGujarat.com નામના પોર્ટલને આયુષ વિભાગનું અધિકૃત પોર્ટલ હોવાનું કહી લોકોને ફસાવાયા હતા. આ પોર્ટલ દ્વારા નકલી ડિગ્રી દ્વારા તેમને પ્રેક્ટિસ કરવાની મંજૂરી મળી હોવાનો દાવો કરવામાં આવતો હતો. આ ગેંગના સભ્યો દર નકલી ડિગ્રી માટે ₹70,000 લેતા હતા. ડોક્ટર અશેષ ગુજરાતી અને ડોક્ટર BK રાવત આ ડિગ્રીની વ્યવસ્થા કરતા હતા, જ્યારે ઇરફાન અને શોભિત સિંહ તબીબો પાસેથી ઉઘરાણી કરતા હતા. પાંડેસરા પોલીસે 13 બોગસ તબીબોને ઝડપી પાડ્યા હતા. ડેઝર વિસ્તારના કૈલાસનગર ચોકડી પાસે આવેલા 3 ક્લિનિકમાં પોલીસે દરોડા પાડી બોગસ ડોક્ટરોનો પર્દાફાશ કર્યો છે. લોકોને એલોપેથિક દવા આપીને સારવાર કરનારા ડોક્ટરો સામે પોલીસ અને આરોગ્ય તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું છે. પાંડેસરા પોલીસ દ્વારા આ ગેંગના 13 સભ્યોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ રાજ્યભરમાં નકલી ડિગ્રીના ગોટાળા સામે તંત્ર સક્રિય થયું છે. ઝડપાયેલા બોગસ ડોક્ટરો પાસેથી મળેલા BEMS સર્ટિફિકેટ રાજ્ય સરકાર અથવા કોઈ અધિકૃત યુનિવર્સિટી દ્વારા માન્ય ન હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આ સર્ટિફિકેટ તેમને ડોક્ટર રશેષ ગુજરાતી અને તેમના સાગરીતો દ્વારા આપવામાં આવતા હતા, જેઓ નકલી ડિગ્રીના ધંધામાં સામેલ હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ સર્ટિફિકેટના આધારે તેઓએ એલોપેથિક દવા આપી અને દર્દીઓનું આરોગ્ય જોખમમાં મૂકી પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી હતી. પોલીસ દ્વારા કડક પૂછપરછ કરતા ઝડપાયેલા ડોક્ટરોના જણાવ્યા મુજબ ડોક્ટર રશેષ ગુજરાતી અને તેની ગેંગે સર્ટિફિકેટ રિન્યૂ કરવા અને પ્રેક્ટિસ ચાલુ રાખવા માટે ધમકી આપી પૈસા પડાવ્યા હતા. આ સર્ટિફિકેટ રિન્યૂ નહીં કરાવ્યા તો તે રદ થઈ જશે અને આરોગ્ય વિભાગથી मुश्किल આવે તો जमावट કરી દેવાની ધમકી આપી હતી. सूरत शहर में माननीय HM सर, DG सर और CP सर इनके निर्देशन से जो फर्जी डॉक्टर हैं जो बिना डिग्री के या गलत डिग्री के साथ में प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन मिला कि पांडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार में 3 डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिला कि वो उनकी डिग्री फर्जी है और यहाँ पे वो एलोपैथिक दवाओं की प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो आरोग्य विभाग की टीम के साथ में शशिकांत मिश्री महतो, ये एक प्रिंस क्लिनिक करके चलाता है, दूसरा सिद्धार्थ कालीपद देवनाथ और तीसरा डॉक्टर जो है वो पार्थ कालीपद देवनाथ. ये तीनों डॉक्टर हैं. ये पांडेसरा विस्तार में एलोपैथिक दवाओं के साथ में प्रैक्टिस करते थे. तो आरोग्य की टीम के साथ में इनके यहाँ पे पुलिस की टीम गई और जब इनकी डिग्रियों की मांगी गई इनसे डिग्री, तो इन तीनों ने BEMS की डिग्री बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल साइंस इसका एक सर्टिफिकेट दिया और इसका फुल फॉर्म उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि ये सर BEMS जो है वो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल साइंस है. और बाद में जब आरोग्य की टीम ने बताया कि इस तरह की कोई डिग्री गुजरात सरकार के द्वारा अधिकृत कोई भी विभाग नहीं देता है, ये डिग्री है वो बोगस है, तो डॉक्टर से पूछताछ की गई कि आपने ये सर्टिफिकेट है ये कहाँ से लिया. तो उन्होंने बताया कि यहाँ रशेष गुजराती करके हैं डॉक्टर और वो लंबे टाइम से ये जो है बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनको उन्होंने इस तरह की डिग्री दी है. और उसके बाद में जब इन तीनों डॉक्टर से पूछपरछ करने के बाद में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया. जो वहाँ से मिला वो एलोपैथिक दवाई है वो पंचनामा में रख के और कब्जे किया गया. उसके बाद में रशेष गुजराती को यहाँ पे जाके उससे पूछताछ की गई और सर्च की गई. तो वहाँ पे भी जब रशेष गुजराती के यहाँ पे उसके ऑफिस में गए तो बालाजी कृपा सोसाइटी पालनपुर जगाट नाका रामदेव रोड पे रहता है. वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स मिले, आई कार्ड के साथ में इस तरह के सर्टिफिकेट मिले 7, खाली सर्टिफिकेट जो प्रिंट करने के लिए थे वो 5 मिले, अलग अलग सर्टिफिकेट उनकी जीरोक्स 15 मिली और मेंबरशिप रिन्यूअल के फॉर्म 8 मिले. तो डॉक्टर से पूछताछ की गई कि आप ये BEMS का सर्टिफिकेट या डिग्री ये किस तरह से देते हो, किस तरह से ट्रेनिंग करवाते हो.
तो रसेश गुजराती ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि वो पहले यहाँ गुजरात में 90s में उसने DHMS का कोर्स किया और पहले एक दो ट्रस्ट के साथ में लेक्चरर तरीके काम किया। होम्योपैथी में उसने लेक्चरर बना, फिर एक ट्रस्ट के कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल बना, फिर प्रिंसिपल बना। उसके बाद उसने धीरे धीरे उसमें ज़्यादा उसको बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में उसको पता लगा और रसेश गुजराती शार्प है तो उसने इसके बारे में स्टडी किया। तो उसको पता लगा कि भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी इसके बारे में किसी तरह का रूल है वो कोई पब्लिश नहीं किया हुआ है, कोई रूल रेगुलेशन से इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है वो बाहर है। तो इसने एक अहमदाबाद के डॉक्टर हैं BK रावत, उनके संपर्क में आया ये। फिर इन दोनों ने मिलके पहला जो इनिशियल कुछ लड़कों को 5-7 लड़कों को जिसका नाम इनको भी नहीं पता है, उनको प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में बताया। 3 साल का कोर्स था पर लगभग 2 साल में इन लोगों ने उनको ट्रेन किया और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाई देना, क्या क्या रोग का उपचार हो सकता है वो सिखाया। जो 4-5 डॉक्टर को इन्होंने बना के मार्केट में भेजा तो उनका अनुभव ये आया कि कोई भी आदमी, पब्लिक के जो लोग हैं वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा लेने के लिए कोई भी पेशेंट नहीं आता है, ट्रीटमेंट कोई करवाता नहीं है और दवा जो है उसका इफेक्ट बहुत धीरे धीरे होता है। तो इस वजह से वो जो डॉक्टर मार्केट में जब गए तो उनको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। तो इन लोगों ने बाद में अपनी स्ट्रेटेजी 2002 के बाद में इन्होंने अपनी चेंज की और इन्होंने जितने भी लोग थे जो कोई किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता था, बाहर का व्यक्ति, उन लोगों से संपर्क करना चालू किया। इन्होंने उनको कि आप हमें 70,000 रुपये दीजिए, हमारा आयुष डिपार्टमेंट जो गुजरात का है उसके अंडर में हमारा बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी गुजरात ये रजिस्टर्ड है और ये अहमदाबाद में है। इसके अंडर में हम आपको ट्रेनिंग करवाएंगे और उसकी डिग्री देंगे। ये ट्रेनिंग 2.5 साल की ट्रेनिंग देंगे, ये सब महज दिखावा था। इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ट्रेनिंग देने का, सूरत में भी नहीं है, अहमदाबाद में भी नहीं है। ये 70,000 रुपये किसी से 60, किसी से 70, मौका मिला तो 80 भी अलग अलग आदमियों से लेते थे। लेने के बाद में उनको 10 से 15 दिन में वो डिग्री प्रिंट करके ये लोग दे देते थे और साथ में रसेल जो है वो यहाँ पे उनको गारंटी देता था कि तुम लोग कहीं पे भी जाओ, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद जो प्रैक्टिस तुम्हें करनी है तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। SMC, पुलिस, आरोग्य ये कोई भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं डालेगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। तो ये उनके बीच बीच में घूमता रहता था और उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये लोग प्रिंट करके देते थे कि ये हमारे बोर्ड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसके बाद में आप अधिकृत हैं कहीं पे भी प्रैक्टिस करने के। तो वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ये लोग रखते थे कि जैसे 1 साल की वैलिडिटी का दिया तो उसके रिन्यूअल के बहाने से 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक ये पर डॉक्टर का 1 साल का वसूलते थे। ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज, सूरत।